today I, Dr. Isha Yadav, is going to take up the subject pharmacognosy, in which we will be studying the basic introduction of pharmacognosy. So, with the word pharmacognosy, the first of all question which arises in the mind of all of us is that what is pharmacognosy? So, let me clarify this. Pharmacognosy is the subject which deals of drugs, to study about the drugs which are being obtained from the natural sources. That means कि वो drugs जो हमें natural sources से obtain होती हैं, the natural sources means the God gifted sources like plants are there, animals are there, minerals are there, marines are there, various number of examples of natural sources are there. So the drugs which are obtained from natural sources are being studied under the pharmacognosy. Or we can say in this we study about the physical property of drug, chemical properties of the drug, the chemical constituents which are present in the drug. Physical properties means the ash value of the drug, the moisture content present in the drug, the foreign material which is present in the drug, etc. Chemical means the chemical constituent present in the drug. Biological means living. So the study of pharmacological action which has been produced by that particular drug. So, and how the drug is going to be cultivated, how the drug formulation is going to be developed, the marketed formulation, how it is going to be developed. So if we are studying all these things about a drug which is being obtained from natural sources is known as pharmacognosy. That means pharmacognosy में हम क्या करेंगे? We will going to study about the drugs which are obtained from natural sources. And natural sources क्या है? These are plants, animal, mineral, marine, etc. are known as the natural sources. Pharmacognosy is a combination of two Greek words. ये दो Greek words को combine करके बनाया गया है, which is the division of two words, pharmakon and gnosis. You can see this over here. It has been mentioned. Pharmakon means a drug, and gnosis means to acquire knowledge of drug. So in this subject, what we are going to do? We are going to acquire the knowledge about those drugs which are obtained from the natural sources. So क्या है फार्माकोग्नोसी? फार्माकोग्नोसी का मतलब है कि इस सब्जेक्ट में हम स्टडी करेंगे उन ड्रग्स के बारे में जो हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलती हैं. एंड नेचुरल सोर्सेज का मतलब हुआ द सोर्सेज विच आर नेचुरल गिफ्टेड बाय गॉड. प्लांट्स हो गया, एनिमल्स, मिनरल, मराइन एक्सेट्रा आर देयर, नंबर ऑफ सोर्सेज आर देयर. Pharmacognosy. Now next we will be moving toward the history of pharmacognosy. Pharmacognosy is regarded as the mother of all sciences. Why I am saying this कि ये mother of all sciences कहलाती है? Because जो भी आपके drugs हैं, whatever the drugs we are using, we are producing, the somewhere or the other way, the source of that drug is natural only. जो source इसका lie करता है वो कहीं ना कहीं natural source से ही वो drug obtain हुई है. Then we are modifying that drug. फिर हम उसे modify करके, convert करके, synthetic way में convert करके फिर market में लेके आते हैं. सो देयरफॉर फार्माकोग्नोसी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि आपके सारे सब्जेक्ट से भी कनेक्टेड है, सारे ड्रग से कनेक्टेड है. फार्माकोग्नोसी, इन द हिस्ट्री ऑफ दिस फार्माकोग्नोसी द वेरियस साइंटिस्ट हैव वर्क. बहुत सारे साइंटिस्ट ने वर्क किया. आउट ऑफ विच फ्यू आर देयर दोज हु हैव वर्क मेजरली. लाइक नंबर वन, द वर्क ऑफ सेडलर. सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे ही वाज सेडलर. इन 1815 सेडलर ने एक बुक लिखी. द नेम वाज द एनालिटिका फार्माकोग्नोस्टिका. In this book, he used this word, or we can say he coined this word pharmacognosy first time. इन्होंने अपनी जो बुक लिखी जिसका नाम था एनालिटिका फार्माकोग्नोस्टिका, किस ईयर में था? दैट वाज इन 1815. इस बुक में इन्होंने फर्स्ट टाइम यूज किया था इस वर्ड को फार्माकोग्नोसी, जिसे इन्होंने बनाया था दो वर्ड को कंबाइन करके. दैट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड अर्लियर, फार्माकॉन एंड ग्नोसिस. आफ्टर दैट द साइंटिस्ट हु वर्कड ऑन दिस इज द गैलन. Galen was the Greek pharmacist who worked on the extraction of the drugs obtained from the crude sources. That means जो आपके गैलन थे, जो आपके सेडलर थे, उन्होंने नाम दिया गैलन. What the Galen had done? इन्होंने वर्क किया एक्सट्रैक्शन में. जो ड्रग्स हैं हमें नेचुरल सोर्सेज से मिल रही हैं, लाइक हमें प्लांट से मिल रही है, एनिमल से मिल रही है, इनसे जो इनके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टेंट्स प्रेजेंट है उन्हें कैसे सेपरेट आउट करना है, वो एक्सट्रैक्ट हमें कैसे निकालना है, दैट विल बी डन बाय द वर्क ऑफ गैलन. इन्होंने काम किया था एक्सट्रैक्शन पे, और इन्होंने कई सारे मेथड्स आपके एक्सट्रैक्शन के डेवलप किए थे. सो देयर आर वेरियस मेथड्स के कैसे हॉट एक्सट्रैक्शन, कोल्ड एक्सट्रैक्शन, मैसरेशन, डिकॉक्शन एक्सेट्रा. देयरफॉर गैलन वर्क ऑन व्हाट? एक्सट्रैक्शन के कैसे उन केमिकल कॉन्स्टेंट्स को आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, कैसे एक्सट्रैक्ट को लेकर के आएंगे कि वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करें.
After the process of extraction, next important scientist is the Hippocrates. Hippocrates is known as the father of medicine also. Why? The reason behind this is that he worked on the anatomy and physiology of the body. That means कि जो body का functions है और जो body के structure है उस पर काम किया था हिपोक्रेट्स ने. इसकी वजह से इनको father of medicine कहा जाता है, because इन्होंने ही ये work किया था कि जो chemical constant आप extract करके निकालेंगे वो आपके body में क्या एक्शन प्रोड्यूस करेंगे, क्या थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करेंगे. सो दीज आर द मेजर साइंटिस्ट आई कैन से हु वर्कड ऑन द फार्माकोग्नोसी ब्रांच. लाइक सेडलर, फर्स्टली ही कॉइन्ड द वर्ड फार्माकोग्नोसी. इन्होंने नाम दिया था 1815 में. किसमें दिया? इन अ बुक एनालिटिका फार्माकोग्नोस्टिका. आफ्टर दैट देन गैलन केम. गैलन ने एक्सट्रैक्ट जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उनको सेपरेट करना, एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को बताया था. वर्क ऑफ द गैलन वाज देयर. आफ्टर दैट वाज द हिपोक्रेट्स. हिपोक्रेट्स ने स्टडी की थी बॉडी की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कि ये जो एक्सट्रैक्ट्स आपने निकाले हैं जिनके अंदर बहुत सारी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, हाउ दे आर गोइंग टू एक्ट ऑन द बॉडी. तो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जो बॉडी की फंक्शनिंग है कि कैसे वो वर्क करती है, द वेरियस ऑर्गन प्रेजेंट इन द बॉडी इज बीन डन by the Hippocrates. Therefore, he is regarded as the father of medicines also. Now, in this portion, next we'll be moving towards the system of medicine. This is also the part of history of pharmacognosy only. Like we have studied about the various scientists who have worked. After that, there are various systems of medicine. So, there are various systems of medicines which are prevailing. बहुत सारे systems of medicines है. हमने बहुत टाइम से सुने भी हैं, बहुत टाइम like आयुर्वेदा सुना है, वी हैव स्टडीड अबाउट आयुर्वेदा सुना, सिद्धा सुना, यूनानी सुना है, होम्योपैथी वेरी कॉमनली नाउडेज यूज वेरी फ्रीक्वेंटली. आपके बहुत सेफ मेथड है, होम्योपैथी हो गया. योगा एंड मेडिटेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ मेडिसिन ओनली. आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस वन बाय वन. As you can see, the system of medicine comprising of various parts. Ayurveda, Siddha, Unani, Naturopathy, Yoga, and then is the homeopathy system of medicine. We'll be starting up with the very first system of medicine, Ayurveda. Ayurveda is regarded as the oldest system of medicine. Ayurveda को सबसे पुराना system of medicine कहा गया है. It has been from the time of Rigvedas and all. जो बुक थी उनमें मेंशन था कि आयुर्वेदा की ये आपके मेडिसिन हैं, ये आपके हर्बल ड्रग्स हैं विच आर टू बी यूज्ड. एंड सबसे कॉमनली यूज्ड सोर्स जो था आपके ड्रग्स को यूज करने का, दैट वाज द प्लांट वाज द मेजर सोर्स. वी कैन से इट इज द मेजर एंड द कॉमन सोर्स ऑफ मेडिसिन एट दैट टाइम. आयुर्वेदा जो है इट इज इन संस्कृत टर्म विच इज कंप्राइजिंग ऑफ टू वर्ड्स, आयुष विच मीन्स लाइफ एंड वेदा मीन्स नॉलेज ऑफ लाइफ. आयुर्वेदा को दो वर्ड को कंबाइन करके बनाया गया, आयुष एंड वेदा, दैट मीन्स लाइफ एंड नॉलेज. जो लाइफ के बारे में नॉलेज गेन करना है, दैट विल बी काउंटेड नोन एज आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन. आयुर्वेदा बिलीव्स ऑन 5 प्रिंसिपल. आयुर्वेदा 5 प्रिंसिपल्स पे बिलीव करता है. लाइक 5 प्रिंसिपल्स आर व्हाट? इट स्टेट्स कि हमारी जो बॉडी है ये 5 एलिमेंट्स की बनी हुई है. व्हाट आर दीज 5 एलिमेंट्स? दैट इज अर्थ, वाटर, स्काई, फायर, एंड वी कैन से दैट इज air, water, fire, sky, and earth. These are the 5 elements. So the basic 5 elements are air, water, fire, sky, and earth. So Ayurveda says that our body is made up of these 5 elements, and these 5 elements are being comprised into 3 doshas. 3 doshas के ऊपर इन्होंने कहा कि हमारी बॉडी में 3 एनर्जीज हैं. What are these 3 energies? These are the vata, pitta, and kapha. वता मीन्स एयर, एयर से रिलेट करेगी जो कि आपकी रिलेट करेगी सर्कुलेशन एंड एलिमिनेशन. आपकी बॉडी में जो कंप्लीट सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड का, फ्लूइड्स का, एक्सेट्रा, एंड हाउ इट इज गोइंग टू गेट एलिमिनेटेड, दैट विल बी काउंटेड एज वता. एंड वता का मतलब है एयर, हवा हम बोल सकते हैं. आफ्टर दैट इज पिता. पिता इज रिलेटेड टू फायर. फायर कहा गया है आपके पिता को. एंड विच इज रिलेटेड टू मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है? लिवर इज आर मेजर ऑर्गन फॉर द मेजर साइट फॉर द मेटाबॉलिज्म. तो आपके ये कहाँ जाएगा? आपके पिता में. एंड कफा इज वाटर, एंड वाटर दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो आयुर्वेदा बिलीव्स ऑन दी 5 प्रिंसिपल्स पे बिलीव करता है कि हमारी बॉडी जो है 5 एलिमेंट्स पे बनी हुई है. और उसका कहना है कि अगर ये जो 5 एलिमेंट्स है, या हम कह
सकते हैं द 3 दोषास और 3 एनर्जीज, अगर इनमें से किसी भी चीज का डिसबैलेंस क्रिएट होगा, अगर इनमें से कोई भी एलिमेंट आपका डिसबैलेंस होता है, अ पर्सन इज सेड टू बी डिजीज. दैट मीन्स इफ एनी ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स और एनी ऑफ दीज एनर्जीज और दोषास इज गोइंग टू गेट डिस्टर्ब और गोइंग टू कम, द इक्विलिब्रियम इज गोइंग टू गेट डिस्टर्ब, अ पर्सन इज सेड टू बी डिजीज्ड. After this, the theory of Panchakarma. Theory of Panchakarma, this is also the part of Ayurveda, कि इन्होंने एक थ्योरी दी एंड द नेम वाज गिवन थ्योरी ऑफ पंचकर्मा, जिसको हम कह सकते हैं थ्योरी ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑल्सो. प्यूरिफिकेशन मीन्स टू प्यूरिफाई बैड एलिमेंट्स और सारी चीज़ों को बॉडी से क्या करना है, एलिमिनेट करना है, क्लीन करना है, नीट एंड क्लीन करना है. तो नीट एंड क्लीन करने के बहुत सारे इन्होंने 5 वेज इन्होंने भी बताए कि थ्योरी ऑफ पंचकर्मा कहती है कि वी कैन क्लीन ऑल दोज थिंग बाय वेरियस वे. नंबर 1 इज वॉमिटिंग. वॉमिट आउट करके आपके जो बैड एलिमेंट्स हैं, आपने टॉक्सिन्स वगैरह भी है, टॉक्सिसिटी भी हो जाती है, तो उसमें भी सलाइन वाटर एक्सेट्रा दे के पॉइजन एक्सेट्रा को बॉडी से रिमूव किया जाता है. सो वॉमिटिंग इज द वन वे टू प्यूरिफाई द बॉडी. नेक्स्ट इज एनीमा. एनीमा दे के भी आपकी जो एलिमिनेशन है उसको किया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है वेस्ट मटेरियल को बॉडी से, तब भी प्यूरिफाई किया जा रहा है. आफ्टर दिस इज एलिमिनेटिंग, के बाद की चीज़ें जो हैं आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो. डिटॉक्सिफिकेशन, जो भी टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस है उसे डिटॉक्सिफाई किया जाए. आप देखते होंगे मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं टू डिटॉक्सिफाई, लिवर को डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए आपके सिरप्स एक्सेट्रा आ रहे हैं. सो दे ऑल कम्स इन द कैटेगरी ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन. मीन्स कि टॉक्सिसिटी को रिमूव करना, टॉक्सिसिटी को हटाना. आफ्टर दैट इज पर्गेशन, कि आप पर्गेटिव्स यूज कर रहे हो कि बाउल्स एक्सेट्रा की मूवमेंट को आपकी इजीली हो जाए और आपके बॉडी से बैड एलिमेंट्स को निकल जाए. सो थ्योरी ऑफ पंचकर्मा और वी कैन से द थ्योरी ऑफ प्यूरिफिकेशन कहती है कि इन 5 तरीकों से हम बॉडी को क्या कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं. वी कैन रिमूव ऑल द बैड एलिमेंट्स ऑफ द बॉडी आउट एंड मेक द बॉडी नीट एंड क्लीन. After this is moving towards the another system of medicine, that is the Siddha system of medicine. सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन ओरिजिनेटेड इन साउथ ऑफ इंडिया. साउथ इंडिया में ओरिजिनेट हुआ था और जो इसकी लिटरेचर है, द इंस्क्रिप्शन विच इज बीन रिटन, दैट इज बीन रिटन इन द तमिल लैंग्वेज में इसको लिखा गया. सिद्धा सिस्टम वॉज बिलीव टू बी डेवलप बाय सिद्धर्स ऑफ साउथ इंडिया. सिद्धर्स बोला जाता है उन्हें. देवर 18 सिद्धर्स, 18 सिद्धर्स थे जिनको माना गया कि उन्होंने उसको डेवलप किया था. जो क्या थे, देवर द फॉलोवर्स ऑफ लॉर्ड मुर्गा who was the son of Lord Shiva and goddess पार्वती के सन थे, जिनकी पूजा करते थे and then believe on those. So they also believe on few principles. ये भी कुछ principles थे इस system of medicine के, और वो principles आपके ये है. They believe on the 8 supernatural powers. Like supernatural powers क्या है, सरम विच इज नोन एज प्लाज्मा. प्लाज्मा किस लिए जरूरी है, आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है. चिनीर, ब्लड, जो कि आपकी बॉडी को नरिश करता है. द ऑल दी एलिमेंट्स विच यू आर गेटिंग, ऑल दी न्यूट्रिएंट्स विच यू आर गेटिंग थ्रू दी ब्लड ओनली. तो आपके उसको क्या करेगा, नरिशमेंट के लिए ब्लड की रिक्वायरमेंट है. मूवमेंट ऑफ एवरीथिंग इज बीन डन बाय ब्लड. आफ्टर दैट इज ऊन. ऊन इज रिलेटेड टू मसल, शेप टू द बॉडी. अगर मसल्स नहीं होंगे तो आपकी बॉडी को एक शेप नहीं मिल पाएगा. सो ऊन इज मसल. Coal zupu is related to fatty tissues and fatty tissues as what? Lubrication. That means lubricate करेंगे, friction को reduce करेंगे. So that is coal zupu. Ilimbu is bone which is responsible for the posture and movement. अगर bones नहीं होंगे तो आपकी body का posture, आपकी movement possible नहीं हो पाएगी. After that is Mulai. Mulai is related to brain and brain is the major strength. So this is Mulai. Sukila, that is semen which is responsible for the process of reproduction. So these are the 8 supernatural powers. Siddha system states that these are the 8 supernatural powers which should lie in a proper balanced state for the person to remain fit and fine, or we can say fit and healthy. After this, moving towards the another system of medicine, that is the naturopathy and yoga. Naturopathy and yoga system of medicine which is used nowadays, जो आपका बहुत ज़्यादा आपका हाइप पे है. सभी लोग नेचुरल सोर्सेज की साइड मूव कर रहे हैं. एवरीवन इज मूविंग टूवर्ड्स मेडिटेशन, योगा के. आप वाई, बिकॉज मेडिसिन आर हैविंग सम साइड इफेक्ट ऑल्सो. तो अगर हम नेचुरल वे से जितना ज़्यादा से ज़्यादा
ठीक हो सके। सो नेचुरोपैथी एंड योगा, नेचुरोपैथी जो आपका सिस्टम है ये आपको सिर्फ एक तरीका नहीं सिखाएगा लाइक आपकी बीमारी को दूर करना, बट आपको बहुत सारे डिजीजेस से ऑटोमेटिकली आपको दूर रखता है इफ यू आर यूजिंग द नेचुरल सोर्स, इफ यू आर यूजिंग द नेचुरल वे ऑफ लिविंग। ना आप नेचर के ज़्यादा उसमें करीब रहेंगे तो आप वैसे भी फिट एंड हेल्दी रहेंगे। योगा एंड मेडिटेशन ये आपकी लाइफस्टाइल को भी चेंज करता है, ये आपके बिहेवियर को भी चेंज करता है, आपकी पूरी बॉडी को चेंज करेगा और आपकी बॉडी के कंप्लीट सर्कुलेशन, मूवमेंट, एवरीथिंग, हर किसी चीज को कंट्रोल करेगा और परफेक्ट फाइन वे में रखेगा विदाउट एनी साइड इफेक्ट। सो नेचुरोपैथी एंड योगा सिस्टम ऑफ मेडिसिन. After this, moving towards the another system of medicine, which is known as the Unani system of medicine. Unani system of medicine is being developed by the Arabs ने किया था and it was originated in Greeks में आपके जाके originate हुआ. It originated in Greece and it follows the teaching of Hippocrates and Galen. Already explained, Hippocrates father of medicine and Galen जिन्होंने क्या किया था, वो explain the process of extraction of chemical constituent from the drug कि chemical extract आप कैसे निकालेंगे. ये बिलीव करते थे, देयर वर 4 ह्यूमर्स जिन पे इनका बिलीव था कि ये सारे एलिमेंट्स आपके परफेक्टली फाइन प्रॉपर इक्विलिब्रियम में रहने चाहिए, बिकॉज इफ दे आर नॉट गोइंग टू बी इन इक्विलिब्रियम स्टेट अ पर्सन इज सेड टू बी डिजीज. सो व्हाट आर दीज ह्यूमर्स? दीज आर द ब्लड, फेल्गन, येलो बाइल, ब्लैक बाइल. बाइल्स क्या हैं आपके? दीज आर द एलिमेंट्स विच आर बीन प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर और आपके टॉक्सिक होते हैं, आप इनको हिंदी पे भी बोल सकते हैं. सो दे आर द अनदर वे लाइक येलो बाइल, ब्लैक बाइल जो कि आपके एंगर और चीजों से रिलेट है. After this, moving towards the another system of medicine, which is homeopathic system of medicine. Homeopathic system of medicine is being developed by Sir Samuel Hahnemann in the 19th century में इन्होंने इसे डेवलप किया था और बहुत ही सेफेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन है. सेफेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन इसलिए भी है बिकॉज ये जो सिस्टम है इसमें आपकी जो मेडिसिन के केमिकल कॉन्स्टेंट है, जो कंसंट्रेशन है, दैट इज वेरी लो. तो जब कंसंट्रेशन अमाउंट जो मेडिसिन जो एक्टिव कॉन्स्टेंट का कम होगा तो साइड इफेक्ट भी नहीं होगा. देयरफॉर आपने देखा होगा कि जो पेशेंट होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन लेते हैं वो बहुत लंबे ड्यूरेशन तक होम्योपैथी सिस्टम की मेडिसिन को खाना पड़ता है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए. ये तुरंत आपको इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेंगी. इनका अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है या जिसको तुरंत इलाज की या मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, ट्रीटमेंट की जरूरत है, इन दैट वे वी कांट गो फॉर द होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन. ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है कि हम इस सिस्टम को तुरंत रिलीफ में यूज नहीं कर सकते. बट हाँ, अगर लॉन्ग ड्यूरेशन की कोई अगर हमारी बीमारी है जिसको हम ले सकते हैं विदाउट अ साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन, देन वी कैन प्रेफर फॉर द होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन. ये सिस्टम कुछ प्रिंसिपल्स पर बिलीव करता था एंड दिस प्रिंसिपल्स आर व्हाट? लाइक क्योर लाइक, सिंगल रेमेडी एंड द मिनिमम डोज. दैट मीन्स लाइक क्योर लाइक, जिस वजह से वो बीमारी कॉज हुई है उसी का क्या करना है, वही उसका ट्रीटमेंट करेगा. सो दैट मीन्स लाइक क्योर लाइक. Second one, single remedy. Single remedy means they are going to give a single medicine. आपकी number of complicated बीमारियां हैं, but the major one is going to be take up and the medicine for that particular is being given to treat that particular disease. After this is minimum dose. Minimum dose is why? सबसे कम कंसंट्रेशन होगी. द मेडिसिन इज गोइंग टू कंटेन अ वेरी लेस कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट बिकॉज ऑफ विच द साइड इफेक्ट्स आर नॉट गोइंग टू बी प्रोड्यूस. जो मेडिसिन है उसमें जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जो आपके एक्शन को प्रोड्यूस करते हैं, दैट आर वेरी लेस, दैट आर बिकॉज ऑफ विच द साइड इफेक्ट्स आर नॉट देयर. So these are the various system of medicine. After this, we are moving towards the next part, that is the scope of pharmacognosy. Pharmacognosy is a branch which is consisting of a vast scope. There is a vast scope which has been summarized in few steps, like you can see indigenous system of medicines. First of all, pharmacognosy सबसे पहली चीज़ हमें ये बताता है कि जो locally हमारी medicines present है, the sources which are present naturally, like अगर हम देखें कि हमारे घर में भी बहुत सारी natural home remedies present है. Tulsi is there, turmeric is there, ginger is there, number of things are there which we are using nowadays. Fennel is there, coriander, asafoetida, that is hing and all. These all are the natural remedies. तो pharmacognosy कहता है कि जो natural drugs हमारे आसपास प्रेजेंट है, लोकली प्रेजेंट है, उनको यूज करना बताया कि वो आपकी बीमारियों में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज हर्बल सिस्टम ऑफ मेडिसिन. ऑब्वियसली द सोर्स क्या है, हमारा नेचुरल है, तो नेचुरल सोर्स किससे रिलेट करेगा, हमारे हर्बल सिस्टम से रिलेट करेगा, हमारे प्लांट्स एक्सेट्रा यूज होंगे.
After this is the novel system of medicine. Obviously, novel means new or new system of medicine, because every day we can search, there are numerous plant sources available, numerous source of flora and fauna is there. Everything is being present in a numerous count. बहुत सारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, मराइन हैं, मिनरल्स हैं, डेली रिसर्च एंड एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, जिसकी वजह से हमें न्यू डिस्कवरीज, न्यू रिसर्च और न्यू मेडिसिन मिलते रहते हैं. सो दिस इज द नोवल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, वी कैन से दिस इज द न्यू सिस्टम ऑफ मेडिसिन. After that is crude drug. Crude means raw form of drug. We can use the raw form of drug also for treating various kinds of diseases, normal diseases like tulsi leaves. We are using the like headache हो रहा है आपको, या इधर it works as an expectorant, गले में प्रॉब्लम है एक्सेट्रा. लिकोराइस, मुलेठी जैसे आप बोलते हैं, that is also used in raw form only. Raw means जो unprocessed form है, आप उसको ऐसे ही यूज करें after a drying. So that is a form of crude drug. So this is also the scope of pharmacognosy कि हम raw form of drug को भी यूज कर सकते हैं. After this is synthetic drugs and antibiotics. Obviously after formulating the medicines, हम उनके synthetic जो other products है वो भी बनाते हैं, medicines बना रहे हैं, antibiotic, anti-cancer, anti-fungal, anti-inflammatory, analgesic, etc. medicines are being prepared. So all these medicines are being counted in antibiotics and synthetic medicines development. So there are various scopes of pharmacognosy, vast scope of pharmacognosy, which has been summarized in few steps. So I'll be just a quick revision of the today's topic, like what is pharmacognosy? Pharmacognosy is the study of drugs which are being obtained from natural sources, and sources are what? Animals, plant, minerals, etc. The various scientists who worked on the pharmacognosy, Sedler, who had given a name pharmacognosy first time in a book Analytica Pharmacognostica in the year 1815. After that Galen work, he explained the process of extraction, how you are going to extract the chemical constituent out of that drug. After Galen, Hippocrates is known as the father of medicine. इन्होंने किस पे काम किया? He worked on the anatomy and physiology of body. Anatomy means the structure of body and physiology means the functioning of body. After these, there are various systems of medicines. Ayurveda system of medicine, which believes on the 5 elements. Vata, Pitta, Kapha are the energies or doshas of these elements. के अगर आपके इनमें से तीनों में से किसी का भी imbalance create होगा, person क्या कहलाएगा? बीमार कहलाएगा. So Ayurveda system of medicine. Siddha system of medicine originated in south of India, developed by Siddhas and written in Tamil language. They believes on the 8 supernatural powers. After this is the Unani system, which believes on the 4 humors पे आपके believe करता है. Developed in Greece में आपके जाकर के originate हुआ था. Hippocrates and Galen की theory को मानता है. After that is the homeopathy system of medicine, which जिसके सबसे ज़्यादा कम side effect है, like cures like की पे believe करता है, single remedy, minimum dose, and developed by Dr. Sir Samuel Hahnemann in the 19th century. After this is naturopathy and yoga, which is the modern system of the medicine in which we are moving forward, कि हम सभी उसको बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ कर रहे हैं, नेचुरल वे की साइड मूव कर रहे हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स की साइड मूव कर रहे हैं, योगा एंड मेडिटेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. आफ्टर दिस स्कोप कि कहाँ कहाँ आपकी फार्माकोग्नोसी का क्या स्कोप है, बहुत वास्ट स्कोप है, विच इज़ बी इंक्लूडिंग न्यू मेडिसिन का डेवलपमेंट करना, हर्बल मेडिसिन आपकी जो डेवलप हो रही हैं, होम रेमेडीज़ आपके इसमें आ जाएंगे, जो भी इंडिजीनियस लोकली अवेलेबल ड्रग्स के बारे में लोगों को अवेयर करना. सो दीज ऑल आर दी scope of pharmacognosy. So this is all about the introduction of pharmacognosy, the basic introduction of pharmacognosy. I'll be taking other topics of pharmacognosy one by one from this is the introduction. So thank you.